Good evening to all the wonderful people of ARY Digital. We had two big games yesterday. First one was the qualifier one, where Multan Sultan stunned Islamabad United by 31 runs. And in the second game, the eliminator, I'm afraid Karachi Kings lost to Peshawar Zalmi. The qualifier one, where Multan Sultan's batting first put up 180 for 5, thanks to three important innings, first by Sohail Maqsood, who scored 59, then Johnson Charles scored 41, as well as Khuzdil Shah, who keeps on delivering, and he scored 42 of 22 balls. But before the spinners, it was Sohail Tanvir who rocked the Islamabad United. At one stage, Islamabad United were tottering at 60 for 5, but there were the opening batsman, Usman Khwaja, who led the fight with 70 odd, but they were always chasing the game. And in the end, they lost by 31 runs. So a comprehensive win. Now let's come to the big game which happened, the second game, which was between Karachi Kings versus Peshawar Zalmi. Now I'll be very honest, Peshawar Zalmi won a very important toss because this was played late in the evening. The match started roughly around 10 p.m. UAE time. Even though still Karachi Kings got to 176 thanks to some crucial knocks by Babar Azam, as well as Pereira, who hit 37 of 38 balls. But 176 on a due night was going to be tough to defend. And once again, it was Hazratullah Zazai was the nightmare for Karachi Kings, except for Tisara Pereira. He went after all the bowlers, hit 5 sixes, 10 boundaries, and scored 76 of 38 balls. Karachi Kings did fight back, but there was that wily fox in the name of Shoaib Malik who stood one end. Until he was around, he made sure that singles were coming. And by the time he departed, Zalmi needed only 13 of 2 overs. And in the end, Karachi fielders panicked. They dropped a crucial catch. We had two blockbuster games yesterday. Now, to talk about both of them, at least for the most important match, which was the eliminator, we have the captain of Peshawar Zalmi, who's also represented Pakistan for many matches, the dashing left-arm swinger, our own Wahab Riaz. Welcome to the show, Wahab bhai. अस्सलाम वालेकुम. Thank you very much, Anish bhai. खुश तो आप बहुत हो गए कि आपने एक कदम आगे ले लिया. नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खेले हम लोग कल. और एज अ कैप्टन जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो तो दैट इज अ वेरी प्राइड मूवमेंट फॉर यू. तो बस कोशिश यही है कि आज का मैच भी जीतते हो और फिर इस खुशी को और वो डबल कर ले, दोबारा कर लें इस खुशी को. बिल्कुल सही कहा कि आज का मैच जीत जाए तो खुशी को डबल कर सकते हैं, क्यों नहीं. बट पहले मैं आप लोगों की बॉलिंग पे आऊंगा. 176 जो आप लोगों ने कंसीड किए कराची किंग्स को, उस वक्त ब्रेक पे जाने के बाद क्या आपको लगा था कि थोड़े 10-15 रन हमने ज्यादा दे दिए कराची किंग्स को, या आपको लगा था कि नहीं ये टारगेट अंडर कंट्रोल है रहेगा? ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग में और फील्डिंग में हम लोगों ने 20 से 25 रन एक्स्ट्रा दिए हैं. जिस पोजीशन में हमने जिस तरीके से हमने शुरू किया था 10-12 ओवरों तक 13 ओवरों तक हमने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, मेरा ख्याल है ये स्कोर 150 के अंडर रहना चाहिए था. थोड़ी बहुत इंटेंसिटी जो है वो लड़कों की थोड़ी बहुत जो है वो उसमें फर्क जरूर आता है गर्मी की वजह से, लेकिन दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. बिल्कुल सही कहा आपने. हमारे साथ नोटेबल जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी जुड़े हुए. शाहिद हाशमी साहब, मैं पहले आपसे ये सवाल पूछूंगा कि हजरतुल्लाह जज़ाई जिन्होंने कराची किंग्स को पहले मैच में भी पिटाई की थी, जहां पे उन्होंने कुछ 60-70 रन बना दिए थे 240 के स्ट्राइक रेट पे, और कल भी ही वाज द मेन कॉक टू सेट दैट विन वेयर ही स्कोर्ड 70 और रादर 76 ऑफ 38 बॉल्स. तो ऐसा क्या खा के आते हैं? पहले तो वहाब को सलाम और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई. अनीस भाई, मैं अब आपके जवाब की तरफ आता हूँ. आई थिंक what I noticed is that Karachi Kings did not have a definite plan to stop Hazratullah Zazai. पिछले मैच में उन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ 63 किए थे, धुआंधार बैटिंग की थी. कल जनजनाती बैटिंग की है. जज़ाई हैं तो जनजनाती बैटिंग उन्होंने की. 10 चौके 5 छक्के, मींस 70 रन उन्होंने बाउंड्री से बनाए, सिर्फ 7 सिंगल लिए. उनको जब भी आप स्पेस दोगे, विड दोगे, वो मारेंगे. ऑफ के बाहर भी विड दोगे तो वो लेग पे खींच के छक्का मार देंगे. तो उनको कंट्रोल करने वाली यकीनन स्ट्रेटेजी बनाई होगी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान कराची किंग्स का फेल हो गया. उसको रोक नहीं सके. उसको शुरू में आउट करने का एक चांस मिला था,
थर्ड ओवर में अगर वो डायरेक्ट हिट होती, रन आउट हो जाते। कराची किंग्स को विकेट्स चाहिए थी, इतना बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन अगेन वही सारे कप्तान ये आके बोलते हैं कि वी वर 20 रन शॉर्ट, वी वर 30 रन शॉर्ट। अब वहाब ने बताया, बिल्कुल सही बताया वहाब ने, कराची किंग्स अपने हिसाब से 20-25 रन ज्यादा बनाने में कामयाब हो गई। 15 ओवर के इख्तिताम पर देवर 105। 16th ओवर उस्मान खालिद कंसीडर्ड अराउंड 22 रन, उससे थोड़ा सा फिलिप मिला कराची किंग्स की इनिंग्स को, एंड देन 19th ओवर में 18 रन बने उमैद आसिफ के। तो 176 वाजंट अ बैड स्कोर। एज अ कैप्टन नवाब, जब आप उनको देखते हो डगआउट में कि ये मारे जा रहा है छक्के, ये मारे जा रहा है, तो दिल की धड़कनें थोड़ी तेज होती है कि भाई थोड़ा हवा में गेंद जाएगा, क्लियर करेगा कि नहीं। कि क्या होता है कि भैया दिया लाइसेंस टू किल, मारो जाके। नहीं, पेशावर ज़ल्मी में every batsman has the license to kill. Everybody has the clarity के just go out, express yourself, play the way that you want to, and there is no additional pressure that you have to carry on the innings for a bit long and stuff. I think काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं हमारे पास, कमरान अकमल, शुएब मलिक की उसमें शक्ल में देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो जज़ई की जो गेम है, एज अ टीम आपको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए होता है, चाहे आप चेस करें या आप टारगेट सेट करें, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को प्रेशर में लेके आना होता है और पावर प्ले जो है वो बहुत क्रूशल है। इवन दो के बॉल बड़ा अच्छा स्विंग होता है यहाँ पे पहले 3-4 ओवर्स में, लेकिन इस तरह के बैट्समैन जो हैं जब वो खेलते हैं तो मैच एक साइड पे हो जाता है। और एक चीज मैं बिल्कुल आपको पूछना चाहूंगा, सारे कराची फैंस डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे, व्हाट इज दैट यू गॉट द वुड ऑन बाबर आजम। दोनों मैच में, पहले लास्ट मैच में आपने एक जबरदस्त यॉर्कर किया, उन्हें एलबीडब्ल्यू किया, और फिर कल के मैच में भी स्लोअर वन डाल के उन्हें फॉक्स किया और वो कैच आउट हो गए। देखिए, सारे जानते हैं कि बाबर इज वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और उसके इर्द गिर्द कराची किंग्स बहुत ज्यादा खेलती है। सो बेसिकली आप देखेंगे कि कराची किंग्स ने जब भी ज्यादा स्कोर किया या लंबा स्कोर किया, उसकी वजह यह है कि बाबर ने एक एंड संभाल के रखा है। बाबर इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जिसके पास सारी शॉट्स हैं, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से अपनी गेम को मनूवर करता है कि जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके ऊपर कोई एडिशनल प्रेशर नहीं रहता। प्लान वाज वेरी सिंपल कि नए बॉल पे बाबर को हम अंदर लेकर आए, बॉल इन स्विंग करें, क्योंकि बाबर हैज दैट टेंडेंसी कि वो थोड़ा सा शफल करता है नए बॉल पे एंड ही लुक्स टू प्ले ऑन द ऑफसाइड अ बिट मोर। सो हम लोगों की प्लानिंग यही थी पहले मैच में कि हम किसी तरीके से पहले 1-2-3 ओवरों में बॉल अंदर लेकर आए, उसके ट्राई टू हिट इट ऑन द पैड्स और गेट हिम एलबीडब्ल्यू और बोल्ड व्हाटएवर। तो वो कोशिश थी और उसमें पहले मैच में कामयाब हो गए। कल बाबर ने बहुत अच्छा खेला। कल बॉल थोड़ा सा स्विंग नहीं हुआ ज्यादा, लेकिन स्टिल ही मैनेज टू प्ले। और जिस तरीके से बाबर जब खड़ा रहता है, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ पिंच हिटर्स इन द टीम, जो अटैकिंग प्लेयर्स है, नॉट आई से पिंच हिटर सॉरी, लेकिन बट अटैकिंग प्लेयर्स हैं, मार्टिन गुप्टिल हो गया, तुषार परेरा हो गया, जरदान हो गया, दानिश वगैरह, ये सारे बहुत अच्छा खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। प्लान किया था कि बाबर को हम लोग ज्यादा जो है वो चेंज ऑफ पेस पे रखेंगे और थोड़ा सा हम इसे आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉलिंग करेंगे, विल मेक हिम ड्राइव और कट मोस्टली इंस्टेड, क्योंकि टांग पे वो बहुत अच्छा खेलता है। सो प्लान वाज क्वाइट सिंपल, तो एग्जीक्यूशन करना जरूरी है और अल्लाह का शुक्र है वो हो गई। बिल्कुल हो गई। शाहिद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमने हजरतुल्लाह जरजाई के बारे में बात की, लेकिन उनके पास एक शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी जो, मैं तो उन्हें कहूंगा कि वो ऐसे चतुर खिलाड़ी है कि जो गेम को सही तरह से एनालाइज करता है। और वो हजरतुल्लाह जरजाई विकेट जाने के बाद उनकी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो उन्होंने गेम को एनालाइज किया और सिंगल्स की तरह धीरे धीरे अपनी टीम को आगे लेके, जब वो आउट हुए सिर्फ 13 रन चाहिए थे। क्या कहना चाहेंगे? विद एज शोएब मलिक इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। अनीस भाई, इससे पहले मैं कमेंट करूंगा ऑन बाबर वहाब। वहाब हैज नाउ प्रूव्ड by dismissing Babar Azam twice that what he is missing in Pakistan team. वहाब रियाज ने बता दिया कि बाबर को कि you are missing me in Pakistan team. And regarding Shoaib Malik is an experienced cricketer. He knows how to handle a match, how to pace the required run rate. और कल जिस तरह वो खेला, थोड़ा सा एंड में आके मैच थोड़ा सा फंस गया था। लास्ट 5 ओवर्स पेशावर ज़ल्मी नीडेड 44, लास्ट 2 ओवर्स में थोड़ा सा ऐसा लगा 14 रन्स के थोड़ा पैनिक कर गए और फिर लास्ट ओवर में जिस तरह 2 कैचेस गिरे। बट द बेस्ट थिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी इज दैट दे हैव क्लैरिटी इन देयर माइंड। उनके बैट्समैनों को ये बताया, जिस तरह वहाब ने कहा कि you have to express yourself, go out and play your natural game. And cricket is a game which is played on instinct. You cannot curb someone's instinct. If he's a hitter, if he's a basher, if he's a destroyer, then don't stop him from his instinct.
बिल्कुल सही कहा शाहिद भाई। वहां बिफोर आई टेक मच ऑफ योर टाइम, एक आखिरी सवाल। बड़ा मैच आज, एक तरह से ये भी एलिमिनेटर ही है, इवन दो इसे हम क्वालिफायर कहते हैं। जो टीम जीतती है वो अंदर जाती है फाइनल में, जो टीम बाहर हारती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड विच इज बीन द टीम टू बिट, कल मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें धराशायी कर दिया है, क्योंकि 31 रन इन अ T20 इज अ बिग मार्जिन। क्या प्लान्स है? आई एम श्योर आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर करेंगे कि किस को किस तरह पकड़ेंगे। प्लान बहुत सिंपल है अनीस भाई। देखिए, वी हैव नथिंग टू लूज, सो देयर शुडंट बी एनी फियर ऑफ लूजिंग, बिकॉज अगर हम हार गए तो हम टूर्नामेंट से बाहर हैं। द ओनली बेस्ट पॉसिबल थिंग टू डू इज के हम लोग जीत के लिए खेलें। क्रिकेट है, अच्छा बुरा होता है, बुरे की आप उम्मीद कर सकते हैं, अच्छा आपको करना पड़ता है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। प्लेयर्स को यही मैसेज दिया है कि जस्ट आप लोग आज के मैच में सिर्फ ये सोचें कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आज भी अपना हाथ खड़ा करेगा और कहेगा आई विल लीड दिस टीम टू द बॉटम ऑफ द गेम और हम लोग फाइनल में क्वालिफाई करेंगे। प्लान्स बहुत सिंपल है। अनडाउटेडली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट, लेकिन जो कल उन मैच वो हारे हैं बिकॉज जो पहला एलिमिनेटर होता है उसमें ये इशू होता है कि आपके पास दो चांसेस होते हैं, और थ्रू आउट एक टीम ने जितने इतना अच्छा मोमेंटम पकड़ा और वो सडनली ऐसे आके मैच हार जाए, सो उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है बनिस्बत जिस तरीके से हम लोग एक एलिमिनेटर खेल के रहे और अब क्वालिफाई करने की कोशिश में है कि हम लोग फाइनल खेलें। नर्व्स की गेम होगी और आई थिंक जो टीम अच्छा खेलेगी अंडर प्रेशर वो जीतेगी। ओपनर्स उनके बहुत मजबूत है, और उनको अगर आपने रोक लिया तो फिर हमने देखा कि कल क्या हुआ था। बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। शाहिद भाई, बिफोर वी लेट वहाब गो, आपको कुछ एक पासिंग सवाल पूछना है? वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल्स। वहाब, मेरे लिए तो पेशावर ज़ल्मी का मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट था जब आप अबरार को कंसोल कर रहे थे कि हमने रिव्यू नहीं लेना, देखना है। आपने जिस तरह अबरार को हैंडल किया, इसी तरह यकीनन आपने हैदर अली को भी हैंडल किया होगा। कितना जरूरी होता है कैप्टन का कि ऐसी यंगस्टर्स को प्रॉपरली हैंडल करें, और साथ ही साथ के हैदर अली के साथ क्या मसाइल है कि वो नहीं खेल रहे मैचेस। देखें, इब्रार यंग लड़का है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा है। पीएसएल में जब आते हैं तो इनकी इमर्जिंग कैटेगरी होती है, एंड ऑब्वियसली एज अ प्लेयर दे वांटेड टू डू वेरी वेल। तो यू नो जो नर्व्स है ना वो काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो यंगस्टर हो या वो हम जैसा कोई सीनियर प्लेयर हो मैच में। उसकी वजह यह है कि नर्व पे जो बंदा अच्छा कंट्रोल करता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। जब वो पैडों पे बॉल लगा, ऑब्वियसली उसको था कि मुझे आउट मिल जाए और मैं आउट कर लूं, बट जब अपील की उसने और मैंने कामी भाई से पूछा, काम भाई ने कहा नहीं पिचिंग आउटसाइड लेग, तो फिर मैं उसके पास गया और मैंने उससे थोड़ा सा काम डाउन किया कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अगले ओवर में तुम दोबारा से उसको आउट कर लोगे। सो एज ए कैप्टन ये आपकी ड्यूटी होती है कि आप हर प्लेयर को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रखें इन एंड आउट ऑफ द ग्राउंड। हैदर की जहां तक बात रही, मेरे लिए हैदर अभी भी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टू हैव इन द टीम। अनफॉर्चुनेटली बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं, सो वो ऐसा होता है कि जब आपसे नहीं हो रहा होता और आपको खिलाई जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एक रेपुटेशन होती है जिस पे आप खेल रहे होते हैं, और जब आप क्लिक नहीं कर रहे होते तो बहुत सी चीजें आपके ज़हन में चलना शुरू हो जाती हैं, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हैदर वांट्स टू परफॉर्म, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी ब्रेक देना इसलिए जरूरी होती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनको मेंटली तौर पे ना वो थोड़ा सा पुरसकून रहे, थोड़ा सा वो उस चीज से जो भी उनके ऊपर एक बुरा टाइम आता है उस पर थोड़ा सा उनको हम लोग एज जो है वो थोड़ा सा टाइम ऑफ दें, ताकि वो थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा प्लान करे चीजों को। We've seen a different side of थैंक यू। Wahab Riaz. We wish him the very best for today's big match. और आई एम श्योर आज वो भी वही गेंद करेंगे जो कल मैं देख रहा था, जो तीसरा परेरा को कर रहे थे, जो बॉल उनके बैट पे आ ही नहीं रहे थे, वो बल्ला लेके खोले थे, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और वो बॉल बाद में आ रहा था। एनीवे, गुड लक टू यू वहाब, मजा आया आपको थैंक यू देखते वेरी हुए मच कल, जी, एंड थैंक उम्मीद यू। करते हैं आप थैंक यू। फाइनल में पहुंचे। अपना ख्याल बहुत रखिएगा। शुक्रिया जी, थैंक यू अनीस भाई, थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। Congratulations to Ashraf Niazi for being the winner for yesterday's contest. We have today's contest too for you guys. Who will be that team which will meet Multan Sultans in the finals? Will it be Islamabad United or will it be Peshawar Zalmi? Make sure to send in your answers at mrcricket@arwydigital.tv. We look forward to hearing from you guys.